ایک بڑی ہی تہلکہ خیز خبر ہو چکی ہے اور آفاق احمد نے ایک نئی بات کر دی ہے جس سے نیا معاملہ کھڑا ہو گیا ہے۔ اس میٹنگ میں اس معاملات میں کیا ہوا ہے میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ ایم کیو ایم کے کارکنان کو گھسیٹ کر عدالت میں لایا جاتا رہا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی گئی، مگر اب رعایت کیوں؟ یہ سوال کس نے پوچھا ہے؟ وزیر اعلیٰ سندھ کہاں گئے؟ اتوار کی ڈیوٹی کس کی لگی ہے اور کیوں لگی ہے؟ مولانا کیا نئے اتحاد کے لیے آ رہے ہیں؟ سندھ میں نئی تبدیلیوں کی گھنٹیاں بج گئی ہیں۔ اور بھارت کی دھمکی اور پھر پاکستان کا جواب، نئی جنگ کب ہونے والی ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم ہر بار کی طرح آپ کو بہت ہی اندر کی خبر بتانے والے ہیں اور بہت ہی تہلکہ خیز معلومات دینے والے ہیں، لیکن ہر بار کی طرح یہ بات کہتا ہوں کہ ڈریے گا نہیں، جھجکیے گا نہیں، گھبرائیے گا نہیں، کوئی لاپتہ نہیں کرے گا۔ آئیے اپنی گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے۔ پنکی کا مسئلہ اب تک چل رہا ہے اور اب اس معاملے میں کود پڑی ہے ایم کیو ایم۔ ایم کیو ایم کے کئی رہنماؤں کے یہ بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ جب ایم کیو ایم کی باری ہوتی ہے تو اس کے کارکنان کو گھسیٹ کر عدالت لایا جاتا ہے، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگائی جاتی ہیں، ان کی آنکھوں پر پٹیاں لگائی جاتی ہیں، لیکن جب کبھی بھی یہ معاملہ خاص طور پر ایک منشیات فروش عورت کے لیے ہوتا ہے جسے گینگسٹر تصور کیا جاتا ہے تو اسے رعایت دی جاتی ہے۔ مگر یہ معاملہ حقیقت میں کیا ہے اور اس سارے سلسلے کو ایک بہت ہی بڑے براڈ کاسٹر نے یہ کیوں کہا کہ سارے معاملات میں پولیس انوالو نہیں تھی بلکہ کچھ اور مخصوص ادارے انوالو تھے، یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے کچھ اور بڑی سیاسی تبدیلیاں جو رونما ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ تیزی کے ساتھ بڑے ہی معاملات ایم کیو ایم جہاں جہاں کمزور ہوتی جا رہی ہے وہیں پر ایم کیو ایم کے مخالفین اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سامنے بہت سارے ایسے لوگ ان کی جگہیں لیتے جا رہے ہیں جو کہ متحدہ قومی موومنٹ کا مرکز رہی ہے۔ تیزی کے ساتھ آفاق احمد صاحب کی پینٹریشن ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جہاں پر ہوئی ہے وہیں پر انہوں نے جہاں اس وقت بہت سارے اسکولوں میں اپنے کیمپس لگائے، اب ایک نئی اطلاعات سامنے آ رہی ہے کہ ایم کیو ایم کے مرکز اور ایم کیو ایم کی بہت ہی کنفرم جگہ یعنی کہ اورنگی ٹاؤن کے اندر آفاق احمد جلد اپنا ایک جلسہ منعقد کرنے والے ہیں۔ یہ ایک بڑی ہی اہم خبر میں آپ کو دینے والا ہوں، یعنی کہ متحدہ قومی موومنٹ دن بدن جہاں کمزور ہوتی جا رہی ہے وہیں آفاق احمد صاحب اپنے نظریے کے ساتھ یا اپنے لوگوں کے ساتھ مختلف جگہوں پر تیزی کے ساتھ پینیٹریٹ کر رہے ہیں۔ مگر خبر یہ نہیں ہے، خبر اس سے بھی بڑی اہم ہے اور بہت ہی اہم چیز میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اور وہ معاملہ ہے اس وقت نئے صوبوں پر ہونے والی بحث اور نئے صوبوں کے ساتھ این ایس سی ایوارڈ اور سندھ حکومت کی مشکلات پر۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک آئینی ترمیم پھر لائی جا رہی ہے، یعنی کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے کہ جس میں صوبوں کی خود مختاری کے حوالے سے اور نئے صوبوں کی تشکیل پر بات کی جا رہی ہے اور این ایف سی پر معاملہ کہا جا رہا ہے۔ مگر اب ہمارے پاس اطلاعات یہ ہیں کہ پچھلی بار بھی پاکستان پیپلز پارٹی پر یہ دباؤ بڑھایا گیا تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دباؤ بڑھنے کے بعد ہی کچھ اور معاملات طے ہوئے تھے۔ کیا اس بار بھی ایسا ہی ہو رہا ہے؟ 28ویں ترمیم میں صوبوں کا ذکر نہیں ہے اور صرف این ایف سی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ صوبوں کو فنڈ کتنا ملنا ہے، مگر سوال یہ نہیں ہے۔ اس وقت خاص طور پہ وہ تمام ویلاگرز کے جنہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور وفاقی حکومت کے بہت ہی قریب تصور کیا جا رہا ہے، وہ مسلسل نئے صوبوں کی تشکیل اور این ایف سی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بیانیہ تشکیل دے رہے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی اس بیانیے کو رد کرتے ہوئے یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں جی، نئے صوبے پر اور اس 28ویں ترمیم پر کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے۔ مگر اسی حوالے سے آفاق احمد صاحب نئے میدان میں آئے اور آفاق احمد صاحب نے ایک نئی چیز اور ایک نیا مطالبہ سامنے رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب اگر 28ویں ترمیم ہو، 27ویں ترمیم ہو، 26ویں ترمیم ہو، تمام ترامیم کو اگر آپ دیکھ لیجئے اور اب نئی 28ویں ترمیم کو بھی دیکھ لیجئے، تو اگر اس میں مہاجروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جا رہا تو ہمیں اس میں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور اگر بڑی طاقتیں وہ تمام معاملات کو حل کرنے کے لیے خود ساختہ ہی کوئی فیصلے کر رہی ہیں، اس میں تمام سیاسی جماعتیں شامل ہو یا پھر کچھ اور لوگ ہوں، تو اس سے اگر یہاں کے لوگوں کو اگر فائدہ براہ راست نہیں منتقل
मुंतकिल हो रहा, तो फिर इन तमाम चीजों से हमें कोई सरोकार नहीं है। आफाक अहमद साहब की इस वक्त अपनी कोई मखसूस नशिस्तें नहीं है या अपनी नशिस्तें इस वक्त कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन स्ट्रीट पावर के हवाले से एक बड़ा ही अहम नाम तस्वुर किया जाता है। आफाक अहमद साहब ने पहले ये मुतालबा किया कि जनाब जनूबी सिंध सूबा दिया जाए, यानी कि कराची और हैदराबाद को मिलाकर एक सूबे की तश्कील की जाए, जबकि इस वक्त जो पंजाब के वीलॉगर्स और दीगर वीलॉगर्स इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि कराची सूबे की बात की जा रही है। मामला यह है कि अब इस सारी सूरत हाल के अंदर आफाक अहमद साहब एक नई इस मुहिम को आगे बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जनाब एनएफसी का मामला बाद में हल किया जाए, सबसे पहले इस मामले को हल किया जाए कि कराची समेत पूरे हैदराबाद को मिलाकर एक जनूबी सिंध सूबा, यानी सिंध को दो हिस्सों में तकसीम करते हुए जनूबी सिंध सूबे को अलग किया जाए और अपर सूबे को अलग किया जाए, ऊपर और नीचे को अलग अलग किया जाए, जिसकी जिसकी सिर्फ और सिर्फ वजह इंतजामी होगी, यानी कि नीचे का सिंध अलग हो जाएगा, ऊपर का अलग हो जाएगा, जनूबी सिंध और ऊपर का सिंध एक अलग अलग मामला हो जाएगा। मगर अब जिस मामला में एक तेजी आ रही है और तेजी के साथ वो भी सारे डिस्कशन में आ रहे हैं, मगर क्या कराची के अवाम वाकई में और कराची और हैदराबाद के अवाम वाकई में किसी जनूबी सिंध सूबे की तरफ जा रहे हैं या वो वाकई में मुतालबा चाह रहे हैं या फिर ये सिर्फ एक बार्गेनिंग टूल्स है? इस पर आपकी राय क्या है? मुझे आपकी राय इसमें जरूर दरकार होगी। दूसरा बड़ा मामला यह है कि इस सारे मामला में एक बहुत ही अहम किरदार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का इस हवाले से बनता है कि वो कौमी असम्बली के अंदर एक 22 नशिस्तें रखती है और वो 22 नशिस्तें किसी भी बार्गेन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 28वीं तरमीम की अगर बाज़गश घूम रही है तो सिंध के हवाले से और खुसूसी तौर पर कराची, हैदराबाद और दीगर इलाकों के हवाले से एमक्यूएम उसमें क्या अपने मुतालबात को रखती है और जिस जनूबी सिंध सूबे की गुफ्तगू हो रही है एमक्यूएम उस मुतालबे को आगे लाकर आगे बढ़ा सकती है। ये वो बुनियादी सवाल है कि जो पूछा जा रहा है, क्या मुत्तहिदा उसमें आगे जाएगी या नहीं जाएगी, जबकि तहरीक इंसाफ इस हवाले से क्या अपना नुक्ता नजर रख रही है। मगर इन सारी तब्दीलियों के अंदर बहुत सारी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इस हवाले से दबाव आ रहा है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक और दबाव को भी खास तौर पर महसूस कर रही है। मौलाना फजल रहमान साहब की इस वक्त कराची के अंदर आमद और सिंध के मुख्तलिफ शहरों के अंदर उनका डेरा डालना और कराची समेत पूरे सिंध की सियासत में इन्वॉल्व होना बड़ा ही अहम रखता है। खासतौर पर एक इत्तेहाद आपको मालूम है कि जीडीए के तौर पर जिसे पीर पगारा साहब मूव कर रहे हैं, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम भी उनकी इत्तेहादी शामिल है और दीगर कॉम्प्रेस जमातें भी उसमें शामिल हैं, उनको बाकायदा यहाँ पर मौलाना फजल रहमान साहब ने सपोर्ट किया है, सिंध की हुकूमत को डाकू करार दिया है और फिर उसके साथ साथ सिंध में ही मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की है वो तमाम ग्रुप के जो कि तहरीक इंसाफ से निकला हुआ है। इसमें महमूद मौलवी हो, इमरान इस्माइल हो, फवाद चौधरी हो, ये सब का सब मौलाना फजल रहमान साहब से मिला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बारे में भी बड़े गौर से देख रही है, क्या मौलाना फजल रहमान सिंध के अंदर मौजूद तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कोई सख्त अमल की तैयारी कर रही है और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर स्ट्रीट यानी सड़कों के हवाले से दबाव बढ़ाने की कोशिश होगी? तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जहां पर तमाम लोग एनएससी और ये तमाम मामला पर गुफ्तगू कर रहे हैं, वहां पर आफाक अहमद साहब भी अपने मुतालबे के साथ सड़क पर और स्ट्रीट पावर की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। दूसरी तरफ एमक्यूएम पाकिस्तान का देखना यह है कि क्या वो कौमी असम्बली के अंदर अपने इन मामलों को लेकर जाती है और मौलाना फजल रहमान साहब की सिंध के अंदर बढ़ती हुई सरगर्मियों के हवाले से आज शर्जील इनाम मेमन साहब से भी सवाल पूछा गया और उनसे ये बात पूछी गई कि इस वक्त जिस तरीके से मौलाना फजल रहमान साहब एक्टिव नजर आ रहे हैं तो आपका क्या ख्याल है? तो उन्होंने कहा कि जनाब वो अपनी सियासी सरगर्मियां कर रहे हैं, लेकिन इस हवाले से शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर दबाव मौजूद नहीं है। मगर मौलाना फजल रहमान साहब की बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट और बराह रास्त सिंध के अंदर तहरीक को आगे बढ़ाना यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए खतरे की घंटियां बज सकती हैं। मगर उसमें एक और मामला अब भी सामने आया, पिंकी के हवाले से जहां पर गुफ्तगू हो रही है और तमाम लोग पिंकी 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 कर रहे हैं, वहीं पर हमने आपको कल के प्रोग्राम में ये बात बताई थी कि उसने पिंकी ने भी खूब सियासी चाल खेली और उसने खास तौर पर सोशल मीडिया और दीगर जगहों पर यह बात कहकर के मुझे बनी गाला के हवाले में यानी कि इमरान खान को कुकिंग प्रोवाइड करने के हवाले से मतलब उसका मफहूम यही था, यानी कि दर हकीकत उसने भी एक सियासी कार्ड खेला है और इस सियासी कार्ड को आगे बढ़ाया। इसी पर एमक्यूएम के कई रहनुमाओं ने गुफ्तगू की। एमक्यूएम के एक एमपीए
ईरान ने तो यहाँ तक कहा कि जनाब इमरान अंसारी ने यहाँ तक कहा कि जब एमक्यूएम के कारकुनान को माजी में इस तरीके से लाया जाता था और इस तरीके से हथकड़ियां पहना कर ले आया जाता था तो उस वक्त तो ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ नहीं करती थी, और इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है उसमें एक खातून को यानी कि एक मंशात फरोश को इस तरीके से लाया जा रहा है। शजील इनाम मेमन साहब, अच्छा शजील इनाम मेमन का एक और किस्सा भी आपको मैं सुना दूं। आज इतवार का दिन है और इतवार का दिन पिछले 3 हफ्तों से मखसूस है कि वजीर आला सिंध हर इतवार के रोज पहुंच जाते हैं कि बीआरटी मंसूबा बन रहा है, नहीं बन रहा, बन रहा है, नहीं बन रहा, और बीआरटी मंसूबे में काफी सरगर्म नजर आए इनके। और खास तौर पर शजील इनाम मेमन साहब के ताल्लुकात इस वक्त दूरी दूरी पर है। जहां पर इस वक्त मुराद अली शाह होते हैं वहां पर शजील इनाम मेमन उनके साथ विजिट पर नहीं आते। अब मामला यह हुआ कि आज इतवार का दिन था और आज मुराद अली शाह को निकलना था, लेकिन उससे पहले ही शजील इनाम मेमन निकले और शजील इनाम मेमन ने सहाफियों को भरपूर प्रोटोकॉल के साथ अपनी बातें दिल खोल कर बयान की, खास तौर पर इस हवाले से कि शाहराए भुट्टो को बाकायदा जुमे के दिन बिलावल भुट्टो जरदारी वहां पर इफ्तिताह कर रहे हैं, तो उससे पहले माहौल बनाने के लिए और उसका क्रेडिट लेने की हर मुमकिन कोशिश शजील इनाम मेमन ने की। उन्होंने ये कोशिश की कि वो इस तमाम का क्रेडिट अपने सर पर ले ले, इसलिए इतवार के दिन जहां वो बीआरटी पर मसरूफ रहे वहां पर शाहराए भुट्टो पर भी बताते रहे कि जनाब देखिए शाहराए भुट्टो ने बताया, जबकि कंदकोट में जो ब्रिज गिरा है उस पर इनकी बातें और इनकी दलीलें अपने तौर पर नजर आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अंदरूनी रस्साकशी और उसके बाद क्रेडिट लेने का सहारा जब बुरा हो जाए तो बीआरटी का क्रेडिट कोई नहीं ले रहा था, लेकिन अब शाहराए भुट्टो का क्रेडिट लेकर हर एक की कोशिश कर रहा है कि जनाब वो आगे से आगे बढ़ सके। अगले जुम्मे को बिलावल भुट्टो जरदारी कराची में होंगे, वो इसका इफ्तिताह करेंगे और जब ज़ाहिर है इसका इफ्तिताह करेंगे तो फिर बहुत सारे सवालात, बहुत सारी चीजें सामने आना शुरू हो जाएगी कि क्या मामला हुआ है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त जहां वजीर आला सिंध और शजील इनाम मेमन के दरमियान अपने आप को दोनों को अलग-अलग प्रोग्रामों में देख रही है, वहीं पर यह भी सवालात उठ रहा है कि आखिर इनके दरमियान इख्तलाफात को खत्म किया भी जाएगा या फिर अब ये मामला किसी एक के जाने और न जाने पर रहेगा। नासिर हुसैन शाह दोनों तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि दोनों तरफ अपना वजन डाले, दोनों तरफ वो साथ साथ चलने की कोशिश करें। तो नासिर हुसैन शाह पिछली बार भी मुराद अली शाह साहब के साथ थे, आज शजील इनाम मेमन साहब के साथ थे, तो अब देखना यह है कि इनके दरमियान इख्तलाफात की मामलात या कहां तक पहुंचते हैं। दूसरा मामला, 2 दिन से ये बयानात आ रहे थे भारत के हवाले से, भारत के इस वक्त जाहिर आरएसएस के जो सरबराह है उनका बयान आया था कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए जाए, इनके साबिक आर्मी चीफ का बयान आया था कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए जाए, और उमर अब्दुल्ला जो इस वक्त कश्मीर के जो मकबूजा कश्मीर है उसके वजीर आला है उनके वालिद का भी ये बयान आया था कि पाकिस्तान से मुज़ाकरात किए जाए। उसके बाद ये माहौल बनना शुरू हुआ था और ब्रिक्स के अंदर भी जो वहां पे कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी कहा गया कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए जाए। आज उन तमाम कोशिशों को बिल्कुल पीछे धकेल दिया गया है। आज जो आर्मी चीफ ने, जो भारतीय आर्मी चीफ है, उन्होंने पाकिस्तान को जो धमकी दी है उस पर पाकिस्तान ने अपना सख्त मौक़िफ़ बयान किया है। इसका मतलब ये कि इंडियन हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान के साथ एक तरफ तो उनके लोग ये बयानात जारी करवाए जाते हैं कि मुज़ाकरात की जाए और दूसरी तरफ से उनके बयानात इस सारे अमल को तहस नहस करके रख देते हैं। अमेरिका और ईरान के हवाले से मामला आपने आज बड़ा बयान सामने आया है और जिस बयान को मैं तमाम बयानात के ऊपर बयान समझता हूं, और ट्रंप का ये बयान कहना और ट्रंप का ये स्टेटमेंट देना कि जनाब वाला, ट्रंप का ये बयान बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनाब ये तमाम की तमाम खामोशी एक नए तूफान का पेशखैमा है। तो अब अगला तूफान क्या जंग, नई जंग के तौर पर आएगा, शदीद बम्बार्टमेंट के तौर पर आएगा या मुज़ाकरात के तौर पर आएगा? अगले 3 दिन इस हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप देखेंगे कि इन 3 दिनों के अंदर बड़े फैसले सामने आएंगे। इस ईद यानी कि ईद इस हफ्ते के आखिर से जो अगला हफ्ता शुरू हो रहा है, आपको इस सारे मामला में नए टर्न्स नजर आएंगे और नई तब्दीलियां नजर आएंगी। मुझे वाज़े तौर पर इसमें नई पेशरफ्त नजर आ रही है और मैं इस नई पेशरफ्त के हवाले से कुछ थोड़ा बहुत आगाह भी हूं, मगर क्या होने वाला है, किस तरीके से होगा, यह आपको मैं अगले 1-2 प्रोग्रामों के अंदर वाज़े तौर पर बता दूंगा। कुछ चीजों की कमी है, वो मालूमात लेकर मैं आपको बिल्कुल जरूर बताऊंगा कि आइंदा दिनों में क्या होने वाला है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश खरम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह के बाद।